like to get a job as per his wish, and everybody would like to go into an industry which is growing industry and where so many opportunities are lying. So looking towards these objectives, today we have organized a webinar of Sachin Sangal sir. He is CEO of Learning Edge Private Limited. And this is second seminar which is conducted by him. All of us, we are aware that e-vehicle industry is one of the growing industry globally nowadays, and because of environmental regulations and the costing which is involved in petroleum products, it has become one of the best option available for all of us. Even we are aware that Tesla has entered into Indian market. So e-vehicle industry, it becomes a very good career option for all the students. So I welcome you all for this webinar. I welcome Sachin Sangal sir. I welcome Principal sir, Rupali madam, Chirchi sir, and all the students for this webinar. And I would like to invite respected Principal sir to guide our students about these e-vehicles. Pawar sir. Okay. So good morning, one and all present once again in the meeting, this webinar, and all the teachers present in the meeting, students, and convener of this webinar is Professor Chirchi sir, and coordinators Professor Anil Palve sir and Rupali madam, and the resource person for this is the CEO of the C-Centric Private Limited, Mr. Sachin Sangal sir. So welcome to all for this webinar, and the topic is itself training to the students and their placement. This is important topic, and the industry in which you are going to be placed is e-vehicle. Student friends, in Aurangabad itself, some e-vehicle industries are going to start. Recently, there was a news in newspapers, that some Professor Palve just now take the name of the Tesla company, and other companies also are going to start their plants in Aurangabad in DMIC project, and it will be hub for e-vehicles, electronic vehicles, and other automobile industry also. And definitely there are, the prices of petrol and diesel now. Means in future, this engine and petrol and diesel engines will not work. This will be absolute, this technology. And the requirement will be there in e-vehicles. And there will be business also, and there will be jobs also. Definitely, Mr. Sachin Sangal sir is going to train you on this area. He will take you to the Lucknow or any other training centers like Bangalore and all. You will get training for 4 months. There are no financial burdens. Some financing agencies also there. So don't worry about it. But he is going to give you assurance of job. That is important. There is assurance of job of about 25,000 per month. So this is big thing. And if you want assurance of job, skill is required, and just for 4 months you need to be trained on the machines itself, and definitely after that you will be given job and placement in the such e-vehicle companies. So my dear students, take this as an opportunity for assurance of job. Don't worry about job. You just focus on this training, this study. For any clarification, any doubts, any support, you please feel free to talk with me, convener Professor Anil Palve sir, head of the Department of Electrical Department, Professor Shastri sir, and head of the Department for Electronics, Professor
Kherde Madam, and Head of the Department for Mechanical Engineering and TPO Coordinator Professor Avinash Karadkhale sir and KT Patil sir will definitely cooperate you, will assist you and support you in this regard. My appeal to all the students to take maximum benefit and best wishes for this webinar. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Thanks a lot. Now I would like to request Rupali Agrawal, madam, to introduce our today's guest, Sachin Sangal, sir. Rupali, madam. Good afternoon, one and all present here. On behalf of Centric Learning Edge Private Limited, this is Rupali Agrawal, channel partner, Maharashtra Division. Would like to extend a very warm welcome again in this webinar. We are knowledge processing outsource organization. We shape your career in a very skilled way. It's my honor and privilege to introduce our CEO and MD, respected Mr. Sachin Sangal sir. He completed his engineering in 94-98 batch and he placed 36,000 plus students till now in pharma and engineering field. Now I would like to request respected Sachin sir to start the program. Over to you, sir. Thank you very much, Rupali. It is a privilege and honor to be a part of this platform. Respected the panelists, all the students. There is one more person from our centric organization, Mr. Shubhankar Chakraborty. He's also on the platform. Good morning to everybody. Sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Okay. So today we are here to introduce a wonderful new platform for upcoming engineers. We have been into this training and placement platform from last 23 years and looking forward to have a good support from Shreyash College so that we can also become a brand and the students who will indulge with this training can also become their brand with the organization. Mr. Shubhankar, can we start with the presentation? Please share the screen. Students, you're very much welcome on the board. After your academic education, everybody is looking forward for a wonderful job based on their skills and the branch. I would like to ask few questions before starting this presentation to everyone who is a participant in this webinar. How many students are there who are looking forward to establish themselves into electrical vehicle technology? Because it is a new technology, future is like wonderful. And when we say that it is a new technology, it means that it is a project stage. Students, we should understand the litigation of every new project. Project means when a new technology is being introduced with Government of India along with any automobile organizations, it means the process and the future is really very, very, very long. I would like to call good engineers from the college so that they should also claim that we have been a wonderful journey in last 4 years of academic education, as well as we would like to be a part of this electrical vehicle team for a 4-month supplementary education, which has been awarded in Raebareli. It is a 370 acres huge plant where you people will come and stay with me along with our centric team, along with the ITI team. I will introduce what is ITI. I will introduce whomsoever we are connected with and the team which we are looking forward to have. It is an experienced team from the automobile sector who will really train you on the specialized and the new technology so that you can always try to make your career very bright, very nice,
in such a manner where you can become a brand towards your parents and towards your college. Campus to industry, it is a wonderful name. You see, it simply means that once you are in campus, you would be looking forward to have a working in the industry. So what is industry and what is campus? Everybody knows it. Campus means 4-year academic education, and industry means 40 years of life where we have to be a part of our industry so that we can serve our family. We have really created a good platform for every new academician so that you can be a part of this organization and what not. You see, the kind of technology which we are offering to you is really amazing. You have to understand the kind of the need of hour which you are looking forward. And you see, Aurangabad is a big hub for automobile industry. Who will not say that I will not work in Aurangabad? Everybody will say, yes, I would be a part of Aurangabad team. But my dear friends, the only hitch in Aurangabad is today there is no company which is working on e-vehicle. In the near future, yes, Aurangabad will also produce a good industry over the e-vehicle. I will be the part of that e-vehicle organization. And you see, if today I am there with you, then that point of time when the industry will formulate in Aurangabad, that point of time also I will be a part of that organization. So not only for today, it is a long journey with the automobile industry in the core area where students are lacking about their own job role. Students from the mechanical side, they are not looking forward to have a good job in their core sector. Same with electrical, same with electronics. But no, now things have been changed like anything. I know pandemic has really created or spoiled a mindset, but no problem. We are all engineers. Why we are spoiling ourselves? Let us be very positive and let us see how we can really generate ourselves. Not generation, it is a regeneration because you are all at home from last 1 year. I know you have not seen the college also. I know you have not seen the outside world also. But now you have a chance to have a wonderful journey where we can start with a new state like UP, Lucknow, Rai Bareli, where our setup is there so that you can enjoy your 4 months supplementary education and you can really work on the machinery part, which is very much important for every engineer. Nowadays, what is happening, you see how many students have been a part of internship. I don't think so much because last year pandemic has hit the all around market, and this year also corona came with the second wave. I know you are not able to see the industry also, but now you have a chance to have a good participant in a big name by ITI Limited. It is the government first PSU which was established in 1948, and since then till date they are offering to mankind. They're offering to every citizen of India. You're working on a PSU where country is being served. So why not be a part of this organization so that we can also learn a beautiful technology by the name of electrical vehicle, which is now being a future for every citizen of India. I hope you got my point. It is a small, introduction about what we are. Next slide, please, Mr. Shubhankar. Silent. Who we are. We would like to introduce ourselves, who we are, so that you should also know what exactly we are basically and why we are here to serve you. We are primarily a skilling company. We have a good saying that everyone has a skill. Somebody wants to skilling for the upcoming companies, and people who are under skilling, I want they should be skilled enough to work with the organization. So there is 3 words: skill, skilling, and skilled. I am working on 3 of them. You people are skilled people because you're all engineers. I respect from my core of heart because I am also an engineer. So engineer always respect other engineers. Knowledge process outsourcing company. What is knowledge? What is process? What is outsourcing? And what is company? It is a very simple knowledge words.
Knowledge means my students, all of you, everyone who is on the board today are all knowledge. I would like to process you. You have been seen yourself under academic education where you have read all the theory. Now that theory will not really play a vital role in your organization. Organization need practical exposure. Here in Centric, you people will be processed through some knowledge modulations, which we have designed, and the industry also have helped us to make your futures little bright. On the behalf of all those, we are processing your knowledge, and then once you are knowledgeable, at that point of time, you people will be outsourced to different organizations. It is a wonderful story and wonderful saying. Don't take it that it is only a story. I would like to, request you, kindly take my words in a very positive manner. Whatever I am telling you, it is all will happen in your future if you join us. Last 22 years, it is a wonderful journey. From last 22 years, we are into this line. We are into pharmaceutical also, we are into engineering also. So students who are coming from the pharmaceutical background, we have already served them like anything. Today we have around 600 organizations where our students are already placed. We can give you thousands of references where you people can see how students have been trained and how students have been placed and now how they are enjoying their life. It is a story which came when we started this thing, and today it became a history. Placed over 36,000 trainees. Till date, we have already placed 36,000 plus students into the world where these people are enjoying their practical life. Ventured into EV technology. It was the year 2018 when we were awarded agreement with Government of India. It is a central government of India, not state government. It is a central government. When we have been judged over our original history, they have scrutinized us and we have applied that yes, we will be a part of this EV training so that we can also call our students from different part of country and they will also enjoy once we are into on the same platform. So it is ventured. We've been ventured in the year 2018. After 2018, you see, we took 1 year at least to set up all the branch. It was a long journey again. We have been, awarded a platform. We have been awarded a training room. We have been awarded hostels for every student to stay with us. We have been awarded a kitchen facility where we can, prepare a wonderful food for you so that you can be safe in our hands. And then, tied up with PSU like ITI Limited. It is again, I told you, ITI Limited. Everybody can Google it. Please Google it. What is ITI Limited? And I will ask you this question again if we met, because I wanted to see your knowledge. I wanted to see your acumen, how you people have been bringed up till date. Again, we have been tied up with NPC. It is again a government body which comes under Ministry of Heavy Industry, National Productivity Council. Big name. You people will be assessed. आपका एग्जाम जो होगा 4 महीने बाद, कौन चेक करेगा? हमने तो आपको ट्रेनिंग दे दी, आपने ट्रेनिंग ले ली, अब कौन उसको चेक करेगा कि आपको कितनी ट्रेनिंग समझ आई? तो there is again a government agency who will take care of your all examination. Students, you have to be very prepared in next 4 months so that government can say, yes, these students are now really specialized engineers where we can take them for the services in different automobile organization. So be clear with your thought. In case if you are joining us, it means that you are very punctual, very disciplined, very educative. Yes, we would take those students who really wanted to make their career in electrical vehicle. Again, a good point where I wanted to speak a little 2 line. ITI Limited plant. Plant means it's not a कारखाना. ये छोटा सा कोई शेड नहीं है. 370 एकड़ जमीन पर बना ये बहुत बड़ा एक मैन्युफैक्चरिंग हब है
जो भारत सरकार के कंपोनेंट्स को बनाता है। आने वाली स्लाइड्स के अंदर मैं आपको ITI को घुमाऊंगा थ्रू एक वीडियो, जिससे आपको ये पता लगेगा व्हाट इज एग्जैक्टली ITI आई एम टॉकिंग अबाउट। ऑलराइट, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। I am basically Sachin Sangal. Many of you knows me. I did my engineering from MIT Pune, which was in the year of 94-98, and since then till date I am into trainings. I wanted to create a history in India, and I hope I have created it, because we have been now partnered to central government. It is a big thing. So I would like to ask and request students to join us, so that you can be a part of this wonderful journey. Next slide please. Why this training is so unique? It means ये ट्रेनिंग के अंदर ऐसा क्या है जो मैं आप लोगों को अपने पास बुलाना चाहता हूं। ये क्वेश्चन हर एक बच्चे के मन में आता है, और मैं इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डिफाइन करना चाहता हूं, ताकि आप लोगों को समझ आए कि आपको वहां पे आने से क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। नंबर 1, आज की डेट में आप एक कैंपस के अंदर हैं। कैंपस की दुनिया अब 2-4 महीने में खत्म होने वाली है, क्योंकि आप सारे 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो पास आउट हो चुके हैं, उन्होंने कॉलेज छोड़े 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है। पिछले 2 सालों के अंदर 1 साल के अंदर स्टूडेंट्स ने कुछ नहीं देखा, क्योंकि पेंडेमिक ने सारा प्रोग्राम खराब कर दिया। और जो अब नए बच्चे हैं 8वें सेमेस्टर के अंदर हैं, उनके सामने भी अभी फ्यूचर बहुत बड़ा खड़ा है, बट अभी हमें ये नहीं पता कि हम कहाँ जाएंगे, कौन हमारा हाथ पकड़ेगा, किस कंपनी में जाएंगे, हमें क्या काम मिलेगा करने के लिए, हम कैसे अपने करियर को बड़ा करेंगे, हम कैसे एस्टैब्लिश होंगे, हम कैसे अपना नाम कमाएंगे। हालांकि आप ये समझते होंगे, आपके पेरेंट्स ने बहुत मेहनत करके आपको इतने लंबे सफर तक तय कराया। आपके HODs ने, फैकल्टीज ने, प्रिंसिपल सर ने आप लोगों को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, एक कॉलेज के अंदर आपको इंट्रोड्यूस किया, जहां पर आप लोग सब पढ़ाई कर रहे हैं। अब इसके बाद आपका एक कर्तव्य होना चाहिए, फर्ज होना चाहिए, कि अब तक जिन्होंने हमारा साथ दिया, अब हम उनके लिए कुछ करें। आप करेंगे कैसे? जब आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। वो प्लेटफॉर्म देने के लिए सेंट्रिक लर्निंग एज ने एक बीड़ा उठाई है, एक कोशिश करी है, जहां पर आप लोगों को इनवाइट किया जाएगा और जहां पर आप लोगों को अपने साथ रखा जाएगा। आपको सिखाया जाएगा कल्चर क्या होता है, कंपनी में काम किस तरीके से किया जाता है। देखो, 2 तरीके की कंपनीज होती हैं। एक कंपनी वो होती है जहां पर आप जाते हैं, लाइन में लगते हैं और वहां पे कहते हैं हमें नौकरी दे दो। और एक तरीके की कंपनी ऐसी होती है जहां पे प्लांट हेड आते हैं, HR आते हैं, और वो आपकी ट्रेनिंग के अंदर आपसे बात करते हैं, और बात करने से उनको, जिनको समझ आता है कि ये बच्चा अच्छा है, ये हम ले जाते हैं, ये बच्चा अच्छा है, इसको हम ले जाते हैं। तो आप सोचो आपका प्लेटफॉर्म कितना बड़ा होगा, जहां पर आपको कंपनी लेके जाएगी। चॉइस इज योर्स, यू वांट टू बी इन अ लाइन और यू वांट टू हैव पीपल हु यू विल आस्क टू सर्व, आपके ऊपर है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक ब्रिज बनाया, जिस ब्रिज के ऊपर इंडस्ट्री को एक तरफ रखा और एक तरफ कॉलेज को रखा, और उस ब्रिज के अंदर हमने कुछ मॉड्यूल्स ऐसे रखे जहां से कॉलेज से निकलने के बाद आप जब इंडस्ट्री में जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे काम क्या करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूं सारे बच्चे आज की डेट में ब्लैंक हैं, एक डार्क रूम है उनके आगे, उनको नहीं समझ आता कि हमें नौकरी में क्या करना होगा। क्या हमें पहले से पता होगा कि हम क्या काम करेंगे, या हमें ये पता होगा कि हमें करना क्या है वहां जाके? डिफरेंस है। दैट इज व्हाट वी हैव मेड अ डिफरेंस। इंडस्ट्री 4.0 बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल। इंडस्ट्री 4.0 companies are working on it. I know many of you doesn't have the understanding what is industry 4.0. Whenever you will come to my campus, you will learn the basic things. First of all, basic parameters of engineering, जहां पर आपकी इंजीनियरिंग साइंस आपको बताएगी कि आपको इंजीनियर बनने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है। और उसके बाद धीरे धीरे आप एक स्पेसिफिक मॉडल पर आएंगे
जहां पर आपको आपका बेसिक इंजीनियरिंग से ऊपर लेवल पर लेके जाएंगे, जहां पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल की कंसेप्ट आपको क्लियर किया जाएगा। पहले क्या होता था कि पहले सारी चीजें मैनुअल होती थी। अब मैनुअल की जगह इंडस्ट्री आज की डेट में ऑटोमेशन में आ गई है। आजकल सारा कंप्यूटराइज्ड हो गया है, उसी को 4.0 कहा जाता है। आज तक आप लोगों ने अपने पेरेंट्स से, अपने सीनियर से, अपने ब्रदर सिस्टर जो भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, उन लोगों से पूछा होगा कि इंडस्ट्री में काम कैसे करते हैं, उन्होंने कुछ बताया होगा। माइट बी यू हैव सम एक्सपीरियंस, बट नाउ द न्यू एक्सपीरियंस विल रियली फ्लोट यू टू अ डिफरेंट वर्ल्ड। आपको कहीं और लेके जाएगा ये नया एक्सपीरियंस, जो कि आज की डिमांड है इंडस्ट्री के अंदर। स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री की एनवायरनमेंट के अंदर कैसे रहा जाता है, एक वर्क कल्चर। स्टूडेंट्स विद इंडस्ट्री एनवायरनमेंट मींस कि इंडस्ट्री जब काम करती है तो हमें वहां पे किस डिसिप्लिन के साथ अपने आप को रखना है। आज तक तो हमें पता ही नहीं हमें डिसिप्लिन क्या होता है, इंडस्ट्री का डिसिप्लिन क्या होता है। दोनों का नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। आज की डेट में जब हम ट्रेनिंग सेंटर पे आते हैं तो हमें पता चलता है कि बच्चों को नॉर्थ और साउथ के बीच में जो एरिया है, मिडल सेक्टर, उसके अंदर बच्चों को कैसे लेके जाना है। उसी को कहते हैं इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट, ताकि इंडस्ट्री में आप अडॉप्ट हो सके और आपको भी वो कल्चर पता हो पहले से, ताकि आप जब इंडस्ट्री में जाएं तो आपको लगे कि ये नया नहीं है, वी हैव ऑलरेडी सीन ऑल दीज थिंग्स। Hands-on training on 785 devices. Guys, new thing. You have never seen around 700 machines एक साथ। एक बार कभी भी आप लोगों ने देखा है 700 मशीनें, 750 मशीनें, जिसके ऊपर आप लोगों को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिलेगी, जिसमें आपको रॉ मटेरियल मिलेगा कि आप उसको कैसे मशीन चलाएंगे। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं होगा मेरे ख्याल से। आपको ये चीजें इसीलिए बताई जा रही हैं ताकि आपको ये समझ आ सके सप्लीमेंट्री एजुकेशन क्या होती है, और उस सप्लीमेंट्री एजुकेशन के अंदर एक इंडस्ट्री के अंदर काम कैसे होता है। इसी का नाम ट्रेनिंग होता है। और इसी के लिए हम ये बताते हैं कि इंपॉर्टेंस कितनी है एक इंजीनियर को। कभी भी अपना करियर स्टार्ट करने से पहले उसको अगर 4 महीने की, 6 महीने की ट्रेनिंग मिल जाए तो उसको ये पता लग जाता है कि मेरे आने वाले टाइम में मुझे काम कैसे करना है, कौन सी मशीन कैसे काम करती है, किस तरीके की आवाज आती है, जिससे मुझे पता लग जाए कि इसका डाउन टाइम होने वाला है या ये मशीन बिल्कुल ठीक चल रही है। These are some basic features where you people should know, and I hope every engineer will really appreciate my things, because these are all ground realities where you people has to understand. It is a need of an hour. You have to be very specific with your job role so that you can be a very good team member of any organization. We have been dedicated training center of electrical vehicle. We are the first academy in India. We are the first academy in India who is offering electrical vehicle training center dedicatedly. ऐसा नहीं है कि ITI के अंदर खाली इलेक्ट्रिकल व्हीकल का ही ट्रेनिंग होता है। ITI तो बहुत बड़ा नाम है, आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ITI के अंदर और क्या क्या बनता है। आने वाली स्लाइड्स के अंदर वो भी मैं आपको बताऊंगा। मेंटर्ड गाइडेड सेल्फ एक्सपीरियंस ट्रेनिंग। अब देखो, हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल एक नया कंसेप्ट है। 2 साल हुए हैं इसको हिंदुस्तान में आए, और इन 2 सालों में आपने कितने कमर्शियल व्हीकल्स, कितने कार, कितने स्कूटर, कितनी स्कूटी, कितनी देखी है आपने मार्केट के अंदर? बहुत कम। So it is under R&D. People are working on it. What they are working, I will again come in another slides, what exactly you will learn and what R&Ds are going on and how you can be a part of that R&D. It is very important for you in case आज अगर आप उस R&D टीम के साथ जुड़ जाते हैं तो आप सोचो आपका फ्यूचर कितना लंबा है। क्योंकि आज आपने जब से जन्म लिया तब से आपने पेट्रोल और डीजल देखा, तो 20-21 साल हो गए आपको, और अगले 20-21 साल, 40 साल, अब जब पेट्रोल और डीजल नहीं होगा तो आप क्या देखोगे? इलेक्ट्रिकल व्हीकल। तो अगर आज इलेक्ट्रिकल व्हीकल के साथ आप जुड़ जाते हो तो आपका जो 40 साल का करियर है वो कितना बड़ा होगा। जस्ट सोचो, और सोचने पर आप मजबूर हो जाओगे कि क्या ये जो सेमिनार के अंदर जो चीजें बताई जा रही हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
असेसमेंट बाय नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, मैंने आपको पहले ही बताया कि 4 महीने बाद जब आप लोगों की एक एग्जाम होगा तो वो कौन लेगा, वो भी अगेन एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एजेंसी लेगा, जिससे आपका पता लगेगा कि आपने 4 महीने क्या सीखा। इनफैक्ट वो एग्जाम मेरा भी है, मुझे भी पता चलेगा कि मैंने अपने बच्चों को कैसे पढ़ाया। कल को आप अगर फेल होते हैं तो आप नहीं फेल होंगे, मैं फेल होऊंगा, मेरी कहीं पढ़ाई में कमी रह जाएगी जिसकी वजह से आप फेल हो जाओगे। और मेरा 23 साल का तजुर्बा ये बोलता है कि मुझे पता है कि बच्चों को मुझे कैसे रखना है, मुझे पता है कि कैसे ट्रेनिंग देनी है, मुझे पता है कि मैं आप लोगों को किस तरीके से कामयाब बनाऊंगा। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप एग्जाम के अंदर पास हो जाएं, और ये एग्जाम आपको इस तरीके से कामयाबी देगा, कल को आपका मन करता है कि भाई मैं गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहता हूँ। अब गवर्नमेंट जॉब तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भी होता है, गवर्नमेंट जॉब तो बिजली बोर्ड भी होता है, बहुत अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट जॉब्स हैं। उस गवर्नमेंट जॉब में जब आप अपना एग्जाम देंगे और एग्जाम में अगर आप पास हो जाते हैं, पास होने के बाद जब आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, उस ग्रुप डिस्कशन के अंदर आपकी सारे सर्टिफिकेट्स देखे जाएंगे। अगर आपने ये एनपीसी का अपना सर्टिफिकेट उनको दिखाया तो वो समझ जाएंगे कि आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म से ट्रेनिंग लेके आए हैं। तो यू सी, आज की मेहनत कल का फल। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, आप इन बातों को बहुत अच्छे से समझिएगा। कोई भी आपको बात समझ ना आए, आपके कॉलेज के अंदर जितने भी आपके मेंटर्स हैं वो सब मुझे जानते हैं, आप उनके पास अपनी क्वेरी लेके जाएं, उसके बाद मैं वो क्वेरी का आंसर दूंगा और मैं आप लोगों से मिलने भी आऊंगा। गारंटेड जॉब अपॉर्चुनिटी, व्हाई वी से गारंटेड जॉब अपॉर्चुनिटी? यू सी, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, सारी ऑर्गेनाइजेशंस सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करती हैं। इन सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनियों ने और कुछ प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज ने हम लोगों को एक मिडिल टायर ट्रेनिंग एजेंसी चूज किया जहां पर हम आपको लेके आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ऑलरेडी जॉब्स हैं, वी आर ओनली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द टैलेंट। आप लोग ये समझते हैं हमेशा कि मार्केट में जॉब नहीं है, बट आप ये बताएं कौन सा काम रुक रहा है आज की डेट में? सारा काम चल रहा है। तो इसका मतलब इंडस्ट्री भी चल रही है, सारे ऑफिसेस चल रहे हैं, लोग भी काम कर रहे हैं, बट हमारे को ये हम भूल जाते हैं कि हमारा जो टैलेंट है क्या वो इक्विवेलेंट है जो हमें इंडस्ट्री अपने पास रख ले। शायद हम यहाँ पे थोड़ा वीक हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, इसी वजह से हमारी सोच में ये बात आ जाती है कि मार्केट में जॉब नहीं है। जॉब है, बहुत अच्छी जॉब्स हैं, बट हमारे पास टैलेंट की थोड़ी सी कमी है, जिसको अगर हम नरिश कर लें और अपने आप को रिच बना लें थ्रू कुछ ट्रेनिंग्स के, तो हो सकता है कि हमारा भी किस्मत का तारा चमक जाए, और वो चमकेगा। अगर आप मेरे पास आए तो आप 100% सक्सेसफुल होंगे, नॉट इवन 99%, इट इज 100% कमिटमेंट टू एवरीवन। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग इज पे आफ्टर प्लेसमेंट। आप आराम से अपनी तैयारी करें, जैसे आप घर पे बैठते हैं, जैसे आप कॉलेज में आते हैं, वैसे ही आप अपने इस सप्लीमेंट्री कैंपस को अपना माने। आपको खाना पीना, रहना, खेलना, कूदना, शॉप फ्लोर ट्रेनिंग, मेंटर्स, आपको सब मिलेंगे। और आपकी जो फीस है, आपको पता होगा आज की डेट में कुछ भी फ्री नहीं है, नथिंग इज फ्री। एंड आई एम ऑलवेज अगेंस्ट ऑफ दिस फ्री वर्ड, क्योंकि जब हम फ्री बात करते हैं तो उसके अंदर ऐसा लगता है कि जाओ जाओ, नहीं जाओ मत जाओ, कोई पेन नहीं नजर आता। और जहां बच्चे पैसे देते हैं या कोई भी पैसा देता है, हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां पर हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हमने पैसा दिया है, हमें कुछ काम करना चाहिए। तो दैट्स हाउ वी टेक ऑल यू ऑफ। We are looking forward for everyone, and we are looking in such a manner where you people will give us a commitment, you people will really come on the platform, and you people will really enjoy and make your career. And then once you are stand up on your legs, then only we would be asking you कि आप अब अपनी फीस दे सकते हैं। जब आपके पास पैसा होगा आप जब दें, और आपको नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलने से आप काम करोगे, काम करने से आपको मेहनताना मिलेगा, उस मेहनताने में से आपको अपनी ट्रेनिंग फीस देनी होगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इट इज अ 4 month डेडिकेटेड ट्रेनिंग, 4 महीने रेजिडेंशियल ट्रेनिंग है। आप लोगों को सबको मेरे पास रहना होगा 4 महीने के लिए।
ITI के प्लांट के अंदर आप लोग रहेंगे भी, काम भी करेंगे, खेलें कूदेंगे भी और अपना पढ़ाई भी करेंगे। और ज्वाइंट सर्टिफिकेशन मिलेगा जब आपका 4 महीने का ट्रेनिंग हो जाएगा। ITI भी आपको सर्टिफिकेट देगा विच इज सेंट्रल गवर्नमेंट, NPC भी आपको अपना सर्टिफिकेट देगा, अगेन अ सेंट्रल गवर्नमेंट, and we people, we are private sector, so it became a public private limited company. We are partners to all central government agencies, and this means that we are also equivalent to sign that certificate, and my sign will really play a vital role in your career. Next slide please. अगर मैं आपको थोड़ा ITI के बारे में बताना चाहूं, it is a government's PSU which has been established in 1948 as I already told you. इसका जो हेडक्वार्टर है बेंगलोर के अंदर है। आप कभी बेंगलोर जाएं तो KR पुरम करके एक जगह है वहां पर, जहां पर आप बेंगलोर का ITI देखें। इट्स अ ह्यूज प्लांट, ह्यूज मींस आपकी नजरें थक जाएंगी, बट ये प्लांट खत्म नहीं होगा, बहुत बड़ा प्लांट है ये। पायनियर इन टेलीफोन, ये टेलीकम्युनिकेशन के अंदर इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था जब हमने इसको स्टार्ट किया था। स्विचिंग गेट्स वगैरह बने थे, स्विचिंग सर्किट्स बनते हैं इसके अंदर। 6 प्लांट हैं हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग जगहों पे। एक रायबरेली है, एक यूपी के अंदर 2 और हैं, एक जम्मू के अंदर है, एक तमिलनाडु के अंदर है और एक बेंगलोर के अंदर है। और इसका जो टेक्नोलॉजी है, द बेस्ट पार्ट which is being offered to all of you, which you will understand in next slides, that it is a lithium technology plant. यहाँ पे बैटरी बनती है। यहाँ पर इतना बड़ा प्लांट है जहाँ पर हम लोग बैटरी कैसे बनाएंगे इलेक्ट्रिकल व्हीकल की वो सीखेंगे। क्योंकि आप लोगों को सबको पता होगा कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उसका बैकबोन आज की डेट में ना फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल माने पेट्रोल और डीजल बिल्कुल नहीं है, इसका बैकबोन है बैटरी। ये बैटरी से चलता है। जब बैटरी से चलता है तो उसका मतलब बैटरी भी कहीं बनती है, और जब बैटरी बनती है तो कैसे बनती है? We should be a part of that manufacturing. So that is what my offering would be. You would be taken care how this battery management will take place. Next slide please. अगर मैं ITI रायबरेली के बारे में बताऊं आपको, कैसे हम लोग पहुंच सकते हैं, कैसे हम लोग जाते हैं, तो आप लोगों को लखनऊ पहुंचना होगा पहले, और लखनऊ तक के लिए ट्रेन यहां से मिलेगी। औरंगाबाद से ना भी मिले तो भूसावल से मिल सकती है, या फिर हमारा मनमाड से मिल सकती है। यू हैव टू रीच लखनऊ फर्स्ट। इट इज 90 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम लखनऊ। 358 acres of campus, Lithium Technology Center, dedicated component screening lab, OFC manufacturing unit. What is OFC? Optical fiber cable. जो आज की डेट में हम कनेक्टेड हैं, हम कैसे कनेक्टेड हैं, इसकी कुछ टेक्नोलॉजी तो होगी। वो टेक्नोलॉजी के ऊपर आप देखेंगे ITI ने आपके लिए कैसे टेक्नोलॉजी तैयार करी। Over 2 lakh square feet of shop floor. It's a big shop floor. Mind it, 2 lakh square feet where these all machinery is being set up. And on these setup, you people will really trained. And then once you are trained, you people are on the sky, in the sky. Next slide, please. A video. Okay. Here is a video which will give you a presentation what exactly ITI is. To hold your breath, आप थोड़ा सा आराम से देखिए कि किस तरीके से ITI ने establishment किया है। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि जहां पर आप जाओगे वो अंदर से प्लांट कैसा लगता है। प्लीज सर, इसको स्टार्ट किया जाए। Campaigns like Digital India and Skill India have been designed to prepare people to take part in these processes. Long-distance communication in India was an arduous process before independence. One had to either write a letter or send telegram in case of urgency to communicate with each other. One company changed all this when it became the first to produce telephones for the country. That company is ITI Limited, earlier known as Indian Telephone Industries Limited.
ITI was started as a telecom industry pioneer to bring about a change in the lives of people of the country by putting the world at their fingertips. 7 decades on, it has not only done this with dedication, but with right vision, it has created a bold footprint in the industry and on the growth of an entire nation. Today, India's telecommunication network is the second largest in the world, and ITI has contributed to more than 50% of the landline network. As the largest manufacturer of telecom products and total solution provider in telecom and IT space in the country. ITI has 6 major manufacturing plants spread across India from Jammu and Kashmir to Kerala. In addition to Bengaluru, these plants are located in Palakkad, Srinagar, Naini, Raebareli and Mankapur. ITI also has non-production units like Network System Units, NSU, with core strength in turnkey project execution and annual maintenance works, and Marketing Division with 8 regional offices and area offices spread across the country. With the incredible growth of technology usage in the recent years, ITI moved from fixed lines to wireless technologies. The company has supplied state-of-the-art equipment like GSM, New Generation Switching Network, DWDM, IPMPLS, MLLN, SSTP to the state-run service providers. ITI as a company looks for ways to make technology more accessible and user-friendly. This is one of the prime reasons that today the company manufactures mini PC. ITI is also engaged in the manufacturing of smart cards and has supplied a significant amount of SIM cards and national identity cards, in addition to switching and signaling equipment. ITI has also manufactures printed circuit boards or PCBs and that caters to the captive as well as external market requirements. ITI has established component screening facilities to test precision components required by Vikram Sarabhai Space Center. ITI has also contributed to India taking a giant leap as a global space power by manufacturing electronic assembly for one of the prestigious missions of ISRO, GSLV Mark III. From high-density pipes to fiber optic cables to optical network, the company boasts of producing products catering to the booming telecom industry. GPON, OFC, HDPE are being manufactured and supplied to BharatNet project as well. This indigenous project of Government of India has been set up for establishment, management and operation of National Optical Fiber Network to provide broadband connectivity to all Gram Panchayats in the country, covering nearly 625,000 villages. ITI is fully committed for realization of the vision of Honorable Prime Minister's mission program like Make in India, Digital India, Startup India and Skill India. We are diversifying into many new areas like setting up of telecom testing facilities including security lab, 5G products and services, IoT based solutions and services, setting up of sensor networks throughout the country. The company is providing many software-based solutions like data center hosting services, Aadhaar authentication, e-wallet, and the banking software-based solutions. We have engaged with startups as our technological partners to bring innovative solutions for creating of the smart infrastructure in the country. The company has built up infrastructure to further its diversification efforts like manufacturing energy-efficient LED lighting products, among other things. Earlier switching equipment
GSM, anchoring equipment like note counting machine all came out of ITI. The company also manufactures optical network terminal, or what is better known as a modem. To consolidate and strengthen the telecom business, ITI manufactures solar panels for powering wireless towers and other utilities. It has set up facility to manufacture 18 megawatt solar modules. Providing products that offers a secure communication network to defense forces is the company's key strength. The Army Static Switch Communications Network project is the country's prestigious Army backbone communication telecom network, implemented in phases along the borders. After successfully deploying the first 3 phases, ITI expects to accomplish the phase 4 of ASCON as well. As a part of Digital India mission, ITI has launched initiatives like Tag ITI Wallet, a digital mobile wallet that can be used for cashless transactions and online payments. ITI also provides Aadhaar-based authentication services to various central and state government agencies. In the current changing scenario, company has diversified into new business areas like services, data centers, and IoT. These are innovative technologies of the future that are already changing the way we live and work. Under Swachh Bharat mission, ITI has started manufacturing and installing feedback devices at public toilets to regularly monitor and maintain the cleanliness of toilets. With the industry growing at a pace beyond imagination, some may say that this is just the beginning for ITI. स्टूडेंट्स, आपको मालूम है ये आपको वीडियो मैं क्यों दिखा रहा हूँ? ये इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि आप लोगों को ये कहीं ढूंढना पड़े कि भाई इसमें तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल कहीं है ही नहीं। ये वीडियो सिर्फ इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि आप लोगों को ध्यान पड़े कि आपका आधार कार्ड, आपके ऑप्टिकल फाइबर और आपके इतने सारे कंपोनेंट जो कि आपको पता ही नहीं है कि ये चीजें बनी कहां पर हैं। ये सिर्फ आपको आइडिया दिया जा रहा है कि ITI is a big platform where central government has given them a permission to start the new technology. जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है वो सबसे पहले भारत सरकार के पास ITI के अंदर आती है और वो ITI फिर उसके ऊपर R&D करती है। R&D के साथ फिर उसको कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर डाला जाता है। फिर मैन्युफैक्चरिंग के बाद मार्केट में अलग अलग प्लेयर्स को दिया जाता है कि आप ये कंपोनेंट बनाओ, आप ये कंपोनेंट बनाओ, आप ये कंपोनेंट बनाओ। ऐसे करके इंडस्ट्री चलती है। आप ये सोचो कि आप कितने लकी हो कि आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि जहां पर आप लोग एक प्लेटफॉर्म पर, ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम सीखोगे जहां पर भारत ने अपने आप को इन्वेंशंस में रखा है। अलग अलग आधार कार्ड, कभी सोचा था आपने आधार कार्ड कोई चीज आएगी? आधार कार्ड भारत सरकार में कहां बना? ये बना ITI के अंदर। ऑप्टिकल फाइबर केबल जिससे हम आज की डेट में कनेक्टेड हैं, ये कहां बनती है? ये ITI में बनती है। उसके बाद रिलायंस जैसी कंपनी, आइडिया जैसी कंपनी, वोडाफोन जैसी कंपनी, एयरटेल जैसी कंपनी, इनसे ये केबल लेती है और ये केबल फिर हमें और आपको जोड़ती है। तो कोई तो बेस है ना, कहीं तो बेस है जहां पर हम लोगों को पता चलना चाहिए हमारी इंजीनियरिंग कहाँ काम आएगी, किस तरीके से काम आएगी, वो क्या उनसा प्लेटफॉर्म है जहां पे ये सब चीजों का स्टार्ट होता है, कहाँ पे R&D की जाती है, कैसे प्रोजेक्ट स्टेज में आता है और कैसे हम लोगों को फिर फाइनली एज अ कंज्यूमर हमें मिलता है। ये बहुत लंबी साइंस है जिसमें मैं आप लोगों को जोड़ना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप जैसे बच्चे कल आगे बढ़कर हमारे प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करें और अपना भी नाम कमाएं और अपने पेरेंट्स का भी और अपने कॉलेज का भी। ये एक मन है, मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन ये मेरा मन है कि मैं श्रेयास कॉलेज को इतना इनपुट दे दूं ताकि आने वाले बच्चे आप लोगों को देखें और आपको देखकर आगे बढ़ें। ये तो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, ओशन है, महासागर है।
इसके अंदर ये मत सोचिएगा कि आज हमने सीख लिया तो ये कल खत्म हो जाएगी। जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक इसके अंदर रेवोल्यूशंस आते रहेंगे, तब तक आपको पढ़ना पड़ेगा, तब तक आपको अपनी R&D करनी होगी और ऐसे आप आगे बढ़ोगे। एनपीसी के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं, जो आपकी सर्टिफाइंग एजेंसी है, ये भी 1958 के अंदर स्टैब्लिश हुई थी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, असेसमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि जो अलग अलग कंपनियों के अंदर प्रोडक्शन होती है उसको ये असेसमेंट, ये ऑडिट करती है, ये असेस करती है। और हमारे केस में प्रोडक्टिविटी कौन होगा? हमारे बच्चे। हमारे बच्चे किस तरीके से 4 महीने सीखेंगे और सीखने के बाद अपने आप को क्लेम करेंगे, नाउ आई एम अ गुड इंजीनियर। वो गुड इंजीनियर कौन लगाएगा ठप्पा? वो लगाएगा एनपीसी, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर्टिफाइड द स्टैंडर्ड ऑफ स्किल आउटकम, जो आप स्किल सीखेंगे उसके ऊपर वो सर्टिफिकेशन देगा आपको। और असेसर एंड इशूअर ऑफ ज्वाइंट सर्टिफिकेशन, असेस भी करेगा और आपका सर्टिफिकेट इशू भी करेगा। सो इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आई बिलीव एवरीवन शुड पार्टिसिपेट with a very positive note. Next slide please. Now very important question starts, what we prepare you for and why? आपको हम क्या प्रिपेयर करेंगे, कैसे प्रिपेयर करेंगे? वो एक टेक्नोलॉजी हमें भी पता होना चाहिए, आपको भी पता होना चाहिए, हमारे मेंटर्स को भी पता होना चाहिए कि हम बच्चों को लेके जाएंगे तो हम क्या, किस लिए लेके जा रहे हैं, वहां पे जाके वो क्या पढ़ेंगे और क्या सीखेंगे। ईवी टेक्नोलॉजी, electrical vehicle technology, it is the fastest industry growing at an accelerating pace. It can't be denied that electrical vehicle are going to be highly adopted in times ahead. आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा ये टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाएगा भारत सरकार की तरफ से। क्यों किया जाएगा? क्योंकि आज की डेट में आप देखें, आप भी मोटरसाइकिल चलाते होंगे, कुछ बच्चे कार चलाते होंगे, आपको पता होना चाहिए फॉसिल फ्यूल कितना महंगा हो गया है, 100 रुपए लीटर। आप बताओ, आप एक जगह जाते हो, दूसरी जगह से आते हो, आपका 100 रुपए खत्म, अब फिर दोबारा से 100 रुपए चाहिए। महंगाई हो गई है, बहुत महंगा होता जा रहा है। हमें नीड ऑफ द आवर, हमें समझना चाहिए कि हम इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करें। आप तो इंजीनियर्स हो, आपके ऊपर तो बहुत भार है, अभी आप लोगों को समझना पड़ेगा और हमें समझाना पड़ेगा कि किस तरीके से हम अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज कर सकते हैं और कहां पे हम पैसे बचा सकते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू सेव मनी। इंडियन ईवी इंडस्ट्री इज गोइंग टू रिप्रेजेंट ₹500 बिलियन अपॉर्चुनिटी बाय 2025। $500 बिलियन का बिजनेस हिंदुस्तान के अंदर 2025 तक आ जाएगा। ये कोई लिखावट नहीं है, ये स्टैटिस्टिक है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्राइवेट सेक्टर के साथ, मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ बैठ के अपने इकोसिस्टम को समझते हुए ये सारी स्टैटिस्टिक आप लोगों के सामने रखी है। गवर्नमेंट पॉलिसी इज पुशिंग इलेक्ट्रिकल व्हीकल मार्केट, टारगेट सेट टू हैव 30% ऑफ ऑल व्हीकल्स बी इलेक्ट्रिकल व्हीकल बाय 2030। इट मींस 5 to 7 मिलियन ईवी ऑन रोड। 2030, आज 2021 चल रहा है, अगले आने वाले 5-7 साल के अंदर, 10 साल के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सपना है और उसने अपना टारगेट बनाया है, 5 से 7 मिलियन व्हीकल रोड के ऊपर होंगे। तो आप ये सोचो, आप लोगों की कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी जॉब के लिए, कितने सारे बच्चे इस प्रोडक्ट के ऊपर काम करेंगे, कितने लोग इसके ऊपर काम करेंगे। और ये टेक्नोलॉजी कोई आज है कल नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक बार आ गई, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव कर दिया तो जब तक हमारी सांसें चलेंगी, जब तक हम जिंदा रहेंगे, तब तक ये टेक्नोलॉजी चलेगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। व्हाट वी फोकस ऑन ईवी, हम ईवी के अंदर फोकस क्या करते हैं? हाउ डज ईवी वर्क? सबको पता होना चाहिए कि ईवी चलता कैसे है, इसका मॉडल क्या है, इसका फंक्शन क्या है। बैटरी टेक्नोलॉजी फॉर ईवी, कौन सी बैटरी होगी, किस तरीके की बैटरी होगी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में लगेगी। चार्जिंग टेक्नोलॉजी, भाई बैटरी है तो उसको चार्ज करोगे जब ही चलेगी, तो इसकी भी एक साइंस है अलग से।
वो भी आपको समझना पड़ेगा। ईवी इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग, जब हम कोई अलग अलग कंपोनेंट्स को रखते हैं और रखने के बाद पहले उसको टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट माने असेंबली लाइन के ऊपर लेके आते हैं उसको पूरी कार बनाने के लिए, पूरा व्हीकल बनाने के लिए, वो भी एक टेक्नोलॉजी है, वो भी हम आपको सिखाएंगे। Power train, again it is a big technology where you people will learn how this energy work in battery system and charging infrastructure. जब हमारे पास चार्जिंग की टेक्नोलॉजी होगी तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनेगा, चार्जिंग पॉइंट्स भी बनेंगे, तो इसके अंदर फिर दोबारा से जॉब अपॉर्चुनिटी आएगी। तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स वेक अप, नाउ टाइम हैज कम। अब आप लोगों को अपना काम करने का मौका मिलेगा, और इतना बड़ी टेक्नोलॉजी है, इतना बड़ा काम है, पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर ये काम आज की डेट में सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो रहा है। बाहर देश की कंपनियां तो हिंदुस्तान में आने भी लग गई हैं। आपने टेस्ला का नाम सुना होगा, टेस्ला ने बेंगलोर में अपना एस्टेब्लिशमेंट कर लिया है। जब बाहर की दुनिया हिंदुस्तान में आ रही है तो हिंदुस्तान की कंपनी क्यों नहीं बाहर जाएगी? यानी हमारे पास एक मौका है अपने आप को डोमेस्टिकली यानी हिंदुस्तान के अंदर भी प्रमोट करना, और उसके बाद हो सकता है अगर हमारी किस्मत में बाहर जाना लिखा हुआ तो आप जर्मनी जैसे देशों के अंदर जाएंगे और वहां पर ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर अपनी करियर को आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जॉब रोल्स, हमें पता होना चाहिए कि हम आज की डेट में जब जॉब करने जाएंगे तो हमारे को कौन कौन सी जॉब्स हैं मार्केट में, जिससे हम लोगों को पता चले कि हमें अपनी एबिलिटी को प्रमोट करना है। कुछ बच्चे प्रोडक्शन में जाएंगे, कुछ बच्चे ऑटोमेशन में जाएंगे, कुछ बच्चे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में जाएंगे, कुछ बच्चे क्वालिटी इंजीनियरिंग में जाएंगे, कुछ बच्चे प्रोसेस इंजीनियरिंग में जाएंगे, कुछ बच्चे मेंटेनेंस में जाएंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाएंगे, टेस्टिंग इंजीनियरिंग में जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएंगे, एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन एक्सीलेंस इंजीनियरिंग में जाएंगे। These are the 11 job roles where we people are making you employable. अब इसके अंदर हर बच्चा एक जॉब रोल के लिए एलिजिबल होगा। अब वो जॉब रोल कौन डिसाइड करेगा? आप करेंगे या हम करके देंगे? ये भी एक बहुत बड़ी साइंस है, क्योंकि जो आपकी एबिलिटी है वो एबिलिटी हो सकता है कि उस जॉब रोल की ना हो। अब वो जो जॉब रोल आप करना चाहते हैं उसकी एबिलिटी को, आपकी एबिलिटी को मैच करने के लिए ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि डिजायर और डिमांड ये दोनों हमेशा अलग अलग होता है, और हमें अपनी सर्विंग उसको उस तरीके से रखनी है जहां पर हमारी डिजायरेबल जॉब भी हमारे साथ चले और हमारी डिमांडेड जॉब भी हमारे साथ चले। समझे बच्चों? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कुछ कंपनीज है हमारे पास जिन कंपनियों ने हमें मौका दिया काम करने के लिए। आज जैसे मैं आपको मौका दे रहा हूं, एक दिन ऐसा था जहां पे मुझे भी मौका मिला। मुझे जब तक काम नहीं मिलेगा मैं आप लोगों को कहां ले जा सकता हूं? मैं पहले डिमांड क्रिएट करता हूं और उसके बाद सप्लाई तैयार करता हूं। ऐसा नहीं है कि पहले मैं आपको तैयार करूंगा और फिर मार्केट में मैं आपके लिए जॉब ढूंढने जाऊंगा। गलत। ये कोई बिजनेस का तरीका नहीं है, ये कोई ट्रेनिंग का तरीका नहीं है। तरीका ये है कि कौन सी कंपनीज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कौन सी कंपनीज हमें चाहती हैं कि हम हमारे से बच्चे वो लें, कौन सी कंपनीज हैं जिन्होंने अपनी शेड्यूल्स दिए हैं ट्रेनिंग के, और उस ट्रेनिंग के शेड्यूल्स के ऊपर हम आप लोगों को तैयार करेंगे। और ये कंपनियां जो आपके स्क्रीन के सामने हैं, JBM, वॉल्वो, स्कॉट्स, JCB, महिंद्रा एंड मिंडा, मैं और कंपनियों के नाम भी डाल सकता था, लेकिन बिलीव मी these are the companies who had given me a work. So why not to work with all these companies? आप लोगों को जान के खुशी होगी, ये गिनती के 6-7 नाम है, लेकिन मार्केट के अंदर इनका एस्टेब्लिशमेंट 200 प्लांट के साथ है। सारी कंपनियों के मिला के 200 यूनिट्स हैं, और हमारा जो टारगेट है पहले बैच के अंदर औरंगाबाद के साथ सिर्फ 130 बच्चों का है। तो जब हमारे पास 200 कंपनियां हैं, एक बच्चे को मैं अगर एक कंपनी में भी दे दूं तो भी मेरे पास 70 कंपनी बचती हैं। तो your opportunity for the job is really high. Don't worry on it. Next slide, please. Fee structure. I will request Mr. Shubhankar if he can, start giving statements on the fee structure.
so that students can really understand. Over to you, Mr. Shubhankar. Thank you, sir. Thank you very much. Basically, it was a wonderful presentation. आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो ट्रेनिंग है कितना यूनिक है, ये ट्रेनिंग कितना ज़रूरी है, ये ट्रेनिंग आपको कैसे तैयार करता है, ये सारी चीज़ें आपने सीख लिया, या इस ट्रेनिंग के बाद आपकी जॉब कैसे गारंटेड है, ये सारी चीज़ें सीख लिए। अब क्या है कि इस ट्रेनिंग के बाद आपको सैलरीज क्या मिलेंगी। सैलरीज जब हम बात करते हैं, इट विल बी इन बिटवीन 20,000 to 25,000 इन हैंड। व्हेन आई से इन हैंड, मतलब सारे पीएफ, ईएसआई, उसके बाद आपके ट्रांसपोर्ट, फूड वगैरह काटने के बाद, तो सीटीसी माइट बी अराउंड 3.0 to 3.6 लाख, ये आपका सीटीसी होगा। अच्छा, इसमें जब वंस द प्रेजेंटेशन इज ओवर, वी विल बी शेयरिंग वन गूगल फॉर्म विथ योर कॉलेज। पलवे सर के साथ हम एक गूगल फॉर्म शेयर कर लेंगे। उस फॉर्म पे आपको जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं वो उसमें उनका अपने डिटेल्स डालने होंगे। डिटेल्स डालने के बाद देन वी विल कॉल देम इंडिविजुअल स्टूडेंट्स। इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को बुलाने के बाद दे विल बी, इफ दिस clear the interview, then if they clear the interview, then we will sign an agreement with individual students. उस agreement में ये रहेगा कि हम आपको क्या सिखाएंगे और आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब हमारा जो फीस है ये 3 पार्ट में है। पहला फीस है जो आपको at the time of agreement you have to sign and send a registration fee of rupees 5,000 plus 18% GST comes to 5,900 rupees। ये आपका रजिस्ट्रेशन फीस होगा। उसके बाद दूसरा जो फीस आपके पास आएगा वो है, आप जब 4 महीने वहां पे रहोगे रायबरेली प्लांट में, तो रहने खाने का खर्चा भी हर मंथ आपको 5,000 प्लस 900 रुपीज एज जीएसटी, 5,900 इंटू 4 मंथ्स आपको देने पड़ेंगे। ये हो गया आपके रहने खाने का खर्चा और रजिस्ट्रेशन फी। अब जो मेन ट्रेनिंग फीस है विच इज 45,000 प्लस जीएसटी, इट कम्स टू 53,100। यू हैव टू पे इट इन 3 इंस्टॉलमेंट्स फ्रॉम योर फर्स्ट सैलरी, सेकंड सैलरी एंड थर्ड सैलरी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जॉब आपकी गारंटी हो रही है, जॉब होने के बाद जब आपको सैलरी मिलने गई उसमें से आप पे करोगे। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फीस। नाउ जैसे मैंने आपको बताया, रजिस्ट्रेशन फीस 5,900, फर्स्ट सैलरी से 17,700, सेकंड सैलरी से 17,700, थर्ड सैलरी से 17,700। अभी कुछ बच्चे ये भी बोलेंगे कि अगर सर मेरे को 20,000 इन हैंड मिलेगा, अगर मैं 17,700 दे दिया सर आपको ट्रेनिंग के लिए, देन कितना बचेगा मेरे पास। इट इज अ वैलिड पॉइंट। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक कंपनी है फाइनेंस पियर, विच इज अ महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी, उनके साथ हमने इस पूरे कोर्स को एग्रीमेंट साइन कर लिया। एग्रीमेंट कैसे साइन किया मैं आपको बताता हूं। जैसे हॉस्टल फीस आपको 5,900 पर मंथ देना था। अगर आप फाइनेंस पियर से फाइनेंस लेते हो तो वो 4 महीने के बदले यू हैव टू पे 6 मंथ्स एंड रफली 4,200 आपका पर मंथ का इंस्टॉलमेंट होगा। तो आपका 6,000 से घट के 4,258 आ गया। सिमिलरली 53,100 का फीस था जो आप 17,700 करके 3 मंथ्स में दे रहे थे। आप अगर फाइनेंस लेते हो तो वो आपको 10 मंथ्स का टाइम मिल जाएगा देने के लिए। तो 5,804 रुपीज पर इंस्टॉलमेंट आपको थ्रू आउट 10 मंथ्स के लिए देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, हमने ये दिखाया आपको, जुलाई में अगर स्टार्ट हो रहा है तो आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आप अपने रहने की फीस दोगे, लेकिन रहोगे 4 महीने। उसके बाद जो ट्रेनिंग फीस है वो जनवरी से दोगे, जनवरी से अप टू नेक्स्ट अक्टूबर। तो ये आपका हर महीने का ट्रेनिंग फीस है जो विच लेसन्स योर बर्डन। ये आपका बर्डन
कम कर देता है. इट इज एक्सेलेंट. बेसिकली आपका क्या हो गया, आप 4 महीने जो फूड एंड लॉज फीस है उसको भी आप इंस्टॉलमेंट 2 इंस्टॉलमेंट बढ़ा के दे सकते हो, और जो ट्रेनिंग फीस है उसको आप 10 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो. सो इट बिकम्स सच अ विन विन प्रोपोजिशन कि आपको अपने उसमें पिंच भी नहीं करेगा, आपके पॉकेट को ज्यादा पिंच नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? आप ऐसे घर पे रहते हो, घर में रहते हो तो ऑटो मिनिमम 5,000 रुपीज आपका ऐसे ही खर्च होता है हर महीने का. जो पेरेंट्स स्पेंड मिनिमम ऑफ 5,000 रुपीज, दैट मनी आप यूटिलाइज कर रहे हो रायबरेली प्लांट में और सीख रहे हो. तो सीख आप फ्री में रहे हो, जब सीख के जॉब मिल जाएगा उसके जॉब से आप अपना फीस दे रहे हो. मैं आपको थोड़ा हाईलाइट बता देता हूँ प्रोग्राम का. ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा जुलाई 2021 में. इट हैज गॉट लिमिटेड सीट्स, 80 मैकेनिकल, 50 इलेक्ट्रिकल. वी हैव ऑलरेडी गॉट 50 प्लस. We have got already 50 plus registration done. And what will be the selection criteria? You should have 60% in 10th and 12th, and then you will be called on depending on the interaction with you, how you fare in the interaction. That interaction medium will be English and Hindi. आप select होगे. On successful selection and completion of training, you will be placed in companies like JBM Limited, Volvo, JCB and other companies as EV specialist. Salary offered हमने पहले भी कहा दिया था 2.4 to 3.6. Residential program 4 months. Cost of lodge and board is 5,900, but if you choose to have a financing done, it will be 4,200 rupees for 6 months. Assessment to be done by National Productivity Council under Department of Promotion and Industry, Ministry of Commerce and Ministry of Commerce. Interns will be working with. देखो इसमें ये जो ट्रेनिंग है ना, इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग ये है, ऐसा होगा कि आप 3 पार्ट में ट्रेनिंग है. एक है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, कैसे आपको हैंडल करना है प्रोडक्शन प्रेशर, जो आप एज अ जब शॉप फ्लोर पे रहेंगे तब सीखोगे. इलेक्ट्रिक व्हीकल आप सीखोगे कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना है. तीसरा जो आपने कोर में सीखा है, मैकेनिकल सीखा है, इलेक्ट्रिकल सीखा है, इलेक्ट्रॉनिक सीखा है. तो मैकेनिकल वाले मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज भी सीखा है, जिसमें उन्होंने मिलिंग भी सीखा है, मशीनिंग भी सीखा है, वेल्डिंग भी सीखा है, डेंटिंग पेंटिंग भी सीखा है. दैट विल बी देयर. इलेक्ट्रिकल वाले ट्रांसमिशन, सिंक्रोनाइजेशन, ये सारी चीजें सीखा है, वो भी आप सीखोगे वहां पे. इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एम्बेडेड टेक्नोलॉजी सीखा है, और इफ यू हैव लर्न पीसीबी डिजाइनिंग, तो ये सारे चीजें आप अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिक व्हीकल ये भी आप सीखोगे. So that completes my part of the presentation. Up will be open for question answer session, and we'll be sharing a link with the college, and you'll fill that form. Thank you very much, Mr. Shubhankar. I hope it was a wonderfully you have presented everything, and students who are looking forward for the loan facility, they can apply, and who are not looking for the loan facility, they can also apply. You have an option. We have given you an opportunity just to have you on the board. Now you can ask any question from us so that we can answer your thought process. Anybody would like to ask any question? कोणाला काही प्रश्न विचारायचा आहे का? त्यांना तुमच्या मला लक्षात अनम्यूट करा आणि प्रश्न विचारा. कोणाला प्रश्न विचारायचा आहे का? इंग्लिश मध्ये विचारा, मराठी मध्ये विचारा. कळलंय का तुम्हाला कशी अपॉर्च्युनिटी, कशी संधी आहे ही ई व्हेकल इंडस्ट्री मध्ये काम करायची? सरांनी तुम्हाला सगळं सांगितलं, कुठे ट्रेनिंग होईल, कसं ट्रेनिंग होईल, किती कॉस्टिंग आहे, काय एलिजिबिलिटी आहे.
आणि एक चांगली संधी तुमच्यासाठी चालून आलेली आहे. म्हणजे ट्रेनिंग करायचं, तुम्हाला जॉबची गॅरंटी आहे आणि देन यू कॅन स्टार्ट वर्किंग डायरेक्टली इन एनी ऑफ द कंपनीज. तुम्हाला क्लायंट्स कोणते आहे, कंपनी कोणते आहे, ट्रेनिंग कुठे होणार आहे, हे पण सगळं सांगितलं आहे. आणि ITI म्हणजे इंडियन टेलिकॉम इन्स्टिट्यूट हे भारतातलं नाही तर जगातलं एक मोठ्या इन्स्टिट्यूट पैकी एक आहे. सेंट्रल गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचं अंडरटेकिंग आहे. सरांनी त्याचा व्हिडिओ तुम्हाला दाखवलेला आहे. तर या सगळ्या गोष्टी लक्षात घ्या. ही चांगली संधी आहे तुमच्या जवळ आणि आताच तुम्ही एंट्री करू शकता. तुमच्यासाठी सर आज इथे थांबले आहेत. कोणाला इंटरॅक्शन करायचं असेल तर तुम्ही सरांशी इंटरॅक्ट करू शकता. मोबाईल नंबर दिला आहे रुपाली मॅडमनी, मोबाईलवर तुम्ही फोन करू शकता. ईमेल ID दिला आहे, ईमेल करू शकता तिथे. काही प्रश्न आहेत का? अरे अनम्यूट करा, ज्यांना बोलायचे तरी अनम्यूट करा स्वतः आणि बोला. हिंदी यू कॅन आस्क इन हिंदी बेटर वे. इफ यू आर नॉट एबल टू टॉक इन इंग्लिश यू कॅन टॉक इन हिंदी. हिंदीमध्ये बोला. अरे फार प्रॉब्लेम असेल तर मराठीमध्ये पण बोलू शकता. परंतु तुम्हाला ही चांगली संधी आहे आणि कारण जॉबची गॅरंटी आहे. बरं जनरल असं म्हणतं की मेकॅनिकलला जॉब नाही आहे किंवा इलेक्ट्रिकल किंवा इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये जॉब नाही आहे. असा विषय नाही आहे, जॉब आहेत. परंतु तुम्हाला जॉब कोण देणार आहे जोपर्यंत तुमच्यामध्ये काही स्किल नसेल, तुम्हाला काही फील्ड ऑन एक्सपिरियन्स नसेल, मशीनवर डायरेक्ट काम करण्याचा अनुभव नसेल तर तुम्हाला जॉब मिळणार नाही आहे 100%. परंतु तुम्हाला जर काही 4 महिन्याची ट्रेनिंग असेल, ती बी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाची जी काही ITI कंपनी आहे अशा कंपनीमध्ये तुम्हाला जर लाईव्ह इंडस्ट्रियल एक्सपिरियन्स असेल तर जॉब का नाही मिळणार? 100% जॉब मिळणार आहे. परंतु तुमची तयारी पाहिजे. तुम्हाला जर तुमच्या घराशेजारीच जॉब पाहिजे असेल तर मग नाही मिळणार. परंतु जोपर्यंत तुम्ही ट्रॅव्हल करणार नाही, बाहेर जाणार नाही, हिंमत करणार नाही, आपण डरपोक राहणार नाही, तोपर्यंत जॉब मिळणार नाही. पण तुम्हाला घर सोडून जायचंच नसेल तर मग मात्र तुम्हाला काही मिळणार नाही, हे लक्षात ठेवा. आणि जॉब नाही किंवा ऑपॉर्च्युनिटी नाही असं होणार नाही. काहीतरी नवीन शिकायला मिळतंय. आणि ई व्हेकल इंडस्ट्री ही अपकमिंग इंडस्ट्री आहे. दिस इज अपकमिंग इंडस्ट्री. फ्युचरमध्ये या चेंजेसला स्कोप राहणार नाही, हे लक्षात ठेवा. आणि तुम्हाला सगळं गुगल लिंक वगैरे सगळं दिलेलं आहे, त्याच्यावर फॉर्म भरून घ्या. तुमचे क्वेश्चन त्यामध्ये टाका, तुम्हाला उत्तर मिळेल. पण विचारा, तुम्हाला कोणाला विचारायचं असलं तर काही प्रॉब्लेम नाही. काही प्रश्न आहे का कोणाचे? And there are two things more which I wanted to add. One, girls are also invited. We are inviting girls also in case somebody is looking forward. And there are few girls from different colleges from Aurangabad who has already joined us. So might be any hindrance from any girls would be taken care, no problem at all. Different guest house, different training hall, everything is different for girls. And number two, I request आपल्या कॉलेजचे काही विद्यार्थी पण ऑलरेडी झालेले आहेत रजिस्टर. बाकी इतर कॉलेजचे पण विद्यार्थी रजिस्टर झालेले आहे. त्यामुळे त्यामध्ये घाबरण्यासारखं काही नाही आहे. यू कॅन जॉइन इट. ओके, कंटिन्यू. And number two, I request principal sir to send some of the faculties along with the students so that students will have a very good, in heart that faculties are with them. So I am inviting faculties also to this program. Definitely, 2 faculties will be deputed there. Okay. Thank you very much, sir. Now, students, please ask questions and don't be hesitant. आप शर्माइए मत. आपके अंदर जो भी है आप हमारे साथ सामने रखिए. हम आपको बेटर वे में समझा पाएंगे और आपकी जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम आंसर दे पाएंगे. आप पूछिए हमसे क्या क्वेश्चन पूछना है. हिंदीमध्ये विचारा किंवा नसेल जमत तर मराठीमध्ये विचारा, आम्ही त्यांना सांगू. काही मनामध्ये शंका असतील, प्रश्न असतील तर ते विचारा. कारण ही चांगली संधी आहे. आपण घराच्या बाहेर थोडं गेल्याशिवाय आपल्याला जॉब म्हणा किंवा चांगली अपॉर्च्युनिटी मिळणार नाहीये. आणि तुमचे फॅकल्टीज पण सोबत असणार आहे तुमच्या ट्रेनिंग मध्ये. त्याच्या पलीकडे आणखी कोणी काय देऊ शकणार आहे? पैशाचा काही मॅटर नाही आहे, कारण फायनान्स प्रोव्हाइड करता येते आणि त्याचं रिपेमेंट तुम्हाला नोकरी लागल्यानंतर करायचं आहे. त्यामुळे इट इज, आय थिंक इट इज व्हेरी कन्व्हिनियंट एव्हरीबडी. Any questions?
एनी क्वेरीज? चॅट बॉक्स मध्ये तुम्ही पोस्ट करू शकता. एक गुगल लिंक पाठवली आहे त्यांनी. इंटरेस्टेड स्टुडंट्स ती गुगल लिंक भरून सबमिट करू शकता, so that your information will go to them. Yes, anybody would like to ask anything? काही सिली प्रश्न असू द्या, काही पण म्हणा. हा सर, हा बोला सर. शास्त्री सर. शास्त्री सर बोला. Yes. All the students from the electrical discipline, when I heard all the scheme, the way of payback, the opportunities, and the future of the electrical vehicle, which is the hot cake at the international and the global level, I request my department students to please take part in this venture and make your brighter and brighter career. One of the faculty from my department, as per the instructions of the honorable principal, will be also shared for the training period. So he will be also with you, and you will have the homely atmosphere, and you will feel free, and you will enjoy this thing. It's a best and very good opportunity which has come to your doorstep. So don't avoid it. The financial problem which are normally with everybody has also been taken care in this scheme. So I request the boys to go ahead and make your career. Thank you. Thank you very much, Mr. Shastri. Okay. Mechanical, electrical and electronic students can participate in this. Molly has asked one question. One question is there, yes. How much are the training hours in a day or week? See, it is a standard 8 hours a day, 6 days a week, but we'll expect you to put in at least 12 hours so that you understand, you have more experience. क्योंकि नया चीज सीखेंगे तो जितना ज्यादा आप टाइम लगाओगे उसमें उतना ज्यादा इन्वॉल्व होगे वहां पे. क्लिअर आहे का माऊली? आणखी कोणाला काही प्रश्न विचारायचा आहे? एनी क्वेश्चन एनीबडी वुड लाईक टू आस्क? हा बोला बोला. दीपक बोला, आम्ही ऐकतोय. लिमिटेड वॅकन्सी आहे का सर फक्त? हा सॉरी, लिमिटेड वॅकन्सीज आहे का फक्त म्हणजे? 130 seats are there, 80 for mechanical and 50 for electrical and electronics. Already 50 has filled up. सीट्स लिमिटेडच आहेत, त्याच्यामुळे ऑलरेडी फिलअप झालेल्या आहेत. तुम्ही अप्लाय करा, प्रोसेस मध्ये या, अप्लाय करायला आणि अपेअर व्हायला का जाते, तुमचं सिलेक्शन होईलच. यू जस्ट अप्लाय फॉर दॅट. आणखी कोणाला काही प्रश्न आहे का? काही शंका असतील मनामध्ये, काही प्रश्न असतील? सरांनी सांगितलंय फायनान्सचा पण प्रॉब्लेम नाहीये. तुम्हाला आजच कोणी फायनान्शियल बर्डन देणार नाहीये. बँकेची स्कीम आहे, स्कीमही तुम्हाला समजून सांगितलेली आहे, त्याच्यानुसार तुम्ही त्याचा लाभ घेऊ शकता. नंतर जॉब लागल्यावर तुम्ही स्लोली रिपे करू शकता. त्याच्यामुळे त्याचंही असं काही बर्डन नाहीये. एक चांगली संधी आपल्या सर्वांसाठी आहे. आणि येणाऱ्या काही वर्षांमध्येच तुम्हाला सांगितलंय ही एक मोठी इंडस्ट्री होणार आहे. औरंगाबादला पण त्याचा बेस येईल, आणखी कंपनीज येतील, तुम्हाला आणखी संधी त्याच्यामध्ये मिळेल. आजच तुम्ही जर गेले तर उद्या युअर फ्युचर विल बी डेफिनेटली ब्राईट. तुमचं जॉब प्रोफाईल सांगितलं आहे, तुमच्या स्पेशलायझेशन नुसार, स्ट्रीम नुसारच तुम्हाला जॉब मिळणार आहे तिथे. तर या गोष्टींकडे लक्ष द्या. आणि एक चांगली संधी आहे. सचिन सर इथे आहेत, यू कॅन टॉक टू देम. So you can ask any questions if you have.
तुम्हाला गुगल फॉर्मची एक लिंक पाठवली आहे मॅडमनी. यू कॅन फिल इट अप so that your details will go to them. Okay. Okay, sir. Okay, conclude. Okay, thank you. Thanks a lot. So we are thankful to Sachin Sangal sir, CEO, Centric Learning Edge Private Limited, and his team, Shubhankar Chakravarti sir, Director, and Agrawal madam for connecting with us. Thanks a lot, sir, and your whole team. You joined today for this webinar, and you have given a nice presentation, and you are actually giving a very good opportunity to all our students. So we are thankful to you. I express my gratitude to Chairman Shreyas Pratishthan, Basavaraj Mangalure sir, and Campus Director Prabhakar Mashalkar sir for their all-time support. The person behind organizing such webinar and who is always active for offering new opportunities to our students is our principal sir, Dr. R.S. Pawar sir. So thanks a lot, sir, for organizing this webinar, and thanks a lot for this initiation. Professor Raj Chirchi sir, he is convener for today's webinar. He is always active for the placement of the students. He is always sending mails and he is always executing his plan. So thank you, sir, for supporting this webinar. I'm also thankful to Avinash Karadkele sir and Agrawal madam, those who are instrumental for organizing this webinar. Karadkele sir has nicely supported the technical support, and because of which now we are able to conduct this webinar in a very smooth manner. So thanks a lot to them. And finally, I express my gratitude to all our students. More than 50 students were there. You joined, and since you joined, you are eager to know opportunity which are there in e-vehicle industry. So thank you for that. You can talk to Sangal sir. You can email them. Mobile number is also provided. You can give information to the link which has been provided to you. So officially, I declare with the permission of our principal sir that this webinar is over. Thank you. Thank you all. Thank you very much. It was a pleasure talking to everyone. Thank you very much.